दोस्तों, आज हम उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके फंडामेंटल्स तो स्ट्रॉन्ग है ही, पर उनका बहुत हाई रिटर्न्स नजर आ रहा है फ्यूचर में। तो पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 27% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट 7-8 years, व्हिच इज फैंटास्टिक। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ फ्री कैश फ्लोज हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, which is a sign of a very good company. Debt equity ratio इसका 0.1 है, तो it's almost a debt free company। और इसका receivable days का बात करें तो that is around 3.5 months, और working capital is around 6.5 months। ROE यानी return on equity has been around 16% in the last 4 years on an average, और वहीं ROCE यानी return on capital employed has been around 15% in the last few years। Again fantastic figures। आज के दिन कई फार्मा कंपनीज जेनरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करती यूएस में, बट लेट 90s में मेनली दो कंपनीज थे। एक था सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और दूसरा डॉक्टर रेड्डी लैब्स, जिन्होंने काफ़ी अच्छा अपना फुटप्रिंट जमाया यूएस में। फिर 2000 के पीरियड में ऑरोबिंदो फार्मा, जायडस कैडिला और लुपिन ने भी अपना अच्छा बेस बनाया यूएस में। और ये सब कंपनीज के बाद एक और कंपनी आए जो भरपूर फायदा उठाई ऑफ द यूएस एफडीए डिसीजन to make the generic drugs landscape more competitive by fast tracking approvals। और आज हम इसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बहुत जबरदस्त ग्रोथ रहा है in the last few years। और actually this stock has been a multi-bagger in the past decade and more than 15 times grow है इसका शेयर प्राइस, और आगे भी बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है। This company is a medium sized company and is engaged in developing, manufacturing and marketing of formulations and API यानी active pharmaceutical ingredients। तो आप सोच रहे कि वेल ये कंपनी में ऐसा क्या खास बात है? बहुत सी इंडियन कंपनीज फॉर्मुलेशंस और API मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट भी करती है, और जेनरिक ड्रग्स काफ़ी कंपनीज एक्सपोर्ट करती है आज के दिन यूएस में। वेल दोस्तों, इस कंपनी का खास बात ये है कि इसका जो स्ट्रैटेजी है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर फार्मा कंपनीज। कंपनी एक्चुअली उन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करती है which is difficult to formulate and manufacture and also face complex legal and regulatory challenges। इसलिए company is actually partnered with global generic players such as Mylan, Actavis, Teva और Lupin to expand in the US generic market। और company limited risk लेके काम करती है, इसलिए it has entered into a de-risking arrangement whereby the partners handle the litigation costs and marketing, while the company receives a share of the profit for manufacturing the formulations। और ये differentiated approach clearly दिखता है क्योंकि a significant portion of its pipeline actually comprises of para IV filings। जेनरिक ड्रग को लॉन्च करने के लिए para IV फाइलिंग तब किया जाता है जब the applicant believes its products or the use of its products and does not infringe on the innovator patents, or where the applicant believes that such patents are not valid or enforceable। सीधे शब्दों में it's a high risk high reward business because it entails litigation on the validity of the patent of the innovator drug। आगे जो मैं पॉइंट बोलूँगा उसको बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसी पॉइंट का फ़ायदा उठा के ये कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पॉइंट ये है that if a generic company is the first to file a ANDA यानी abbreviated new drug application with a para IV certification and also prevails in the subsequent lawsuit, then that generic company is granted a period of market exclusivity of 180 days। अब होता क्या है, जनरली एक या दो जेनरिक कंपनी रहता है along with the innovator, इसलिए 6 महीना में ये कंपनी के लिए सेल्स जो है इट्स अ बिग बोनांजा। एक्चुअली 2011 को बात जाती है when the company announced its arrival on a big stage by filing ANDA of a generic version of Tamiflu drug owned by a US company, and this company claimed the FTF status यानी first to file status, जिसके बारे में पहले मैंने कहा था। और since इस कंपनी को FTF status मिल गया था, it gave actually the company the compulsory license to manufacture and sell a patented medicine।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ ले कि ये जो कंपल्सरी लाइसेंस है ये तभी दिया जाता है व्हेन अ ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट क्रिटिकल इलनेस इज नॉट अवेलेबल एट अ रीजनेबल प्राइस आफ्टर 3 years ऑफ ग्रांटिंग द पेटेंट, और if the patent is not used in making the product in the country. और अगर एक एग्जांपल ले तो कंपनी हैज एक्चुअली मेड अ केस दैट Bayer's Nexavar used for treatment of liver and kidney cancer merited compulsory licensing. कंपनी ये कह रही थी कि एक्चुअली दिस ड्रग ये कंपनी सप्लाई कर सकती है 1 महीने के लिए, वो भी केवल 8,800 में। अब आपको लग रहा होगा कि ड्रग 8,800 का कोई सस्ता तो ड्रग है नहीं। वेल, आपको पता है ये बेयर्स क्या प्राइस चार्ज कर रही थी ड्रग का? बेयर कंपनी वॉज चार्जिंग 2,80,000 रुपीज। कहा 2,80,000 और क्या केवल 8,800। अब आप देख रहे हो कितना मेजर प्राइस डिफरेंस था। 2015 में कंपनी ने हेपेटाइटिस सी सेगमेंट में अपना पैर जमाई बाय बीइंग द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च द generic version of Gilead's Sovaldi under the Hepsinat brand. In fact, it along with another partner was one of the 11 players to enter into a non-exclusive licensing agreement in 2015 to manufacture and market Gilead's hepatitis C portfolio in 91 developing countries. इसके बाद कई और लॉन्चेस की कंपनी ने, जिससे इसका प्रेजेंस इन द यूएस फॉर्मुलेशंस बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग हुआ। इनफैक्ट आज के दिन it already has 20 para 4 opportunities in the pipeline, including the G Revlimid, which is its largest opportunity to date. मार्च 2022 में ये पहला कंपनी होगा जो लॉन्च करेगी G Revlimid, और इसलिए कर पा रही है लॉन्च क्योंकि डॉक्टर रेड्डी लैब का सेलजिन के साथ सेटलमेंट हो गया ऑन द पेटेंट ऑफ द ड्रग। सेटलमेंट के हिसाब से जब ये कंपनी लॉन्च करेगी ड्रग 2022 को मार्च में, देन इट कैन ओनली लॉन्च विद अ मिड सिंगल डिजिट मार्केट शेयर कंस्ट्रेंट इन द फर्स्ट ईयर, व्हिच कैन ग्रेजुअली इंक्रीज टू अप्रॉक्सिमेटली 33% इन द फाइनल ईयर ऑफ एक्सक्लूसिविटी, व्हिच इज 2026। और एक बार एक्सक्लूसिविटी पीरियड ओवर हो जाएगा, then there will be no market share constraint. कंपनी नॉन यूएस मार्केट्स को भी काफी हद तक एक्सप्लोर कर रही है क्योंकि देयर इज इंटेंस कंपटीशन इन द यूएस मार्केट, स्पेशली इन द जेनेरिक सेगमेंट। और क्या है कि जो कंट्रीज है वहाँ अभी भी अच्छा खासा मार्जिन्स कंपनी को मिल रहा है बाय सप्लाइंग द जेनेरिक ड्रग्स। इनफैक्ट कंपनी बिलीव करती है दैट मेन इंटरनेशनल मार्केट्स यानी ब्राजील एंड कनाडा विल बी द की अर्निंग्स ड्राइवर्स इन द फ्यूचर। Already इसका कोटा तेलंगाना facility has been approved by the Brazilian Health Regulatory Agency and Health Canada. देखा जाए तो ये कंपनी already is one of the leading generic oncology medicine supplier in Canada. और इसके अलावा और भी कई emerging markets में भी जा रही है, जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस। एक्चुअली ऑन्कोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसके लिए इंडियन मार्केट में भी, क्योंकि it has 33 products across 2 segments, hematology जहां 14 ब्रांड है and solid tumors जहां इसका 19 ब्रांड है। In fact, the company plans to build a full-fledged bone marrow transplant portfolio in India and has already launched Thiotepa, which is India's first generic BMT product, यानी bone marrow transplant product। इसके अलावा इसका कार्डियोलॉजी और डायबिटोलॉजी सेगमेंट में भी प्रेजेंस है। API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोडक्ट में भी कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन है। द कंपनी एक्चुअली फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ निश APIs टू सपोर्ट इट्स फॉर्मुलेशन बिजनेस। इनफैक्ट कंपनी का प्लान है टू वर्टिकली इंटीग्रेट इट्स API फैसिलिटी व्हिच विल हेल्प टू इंश्योर बिजनेस सस्टेनेबिलिटी इन पीरियड्स ऑफ मार्जिन प्रेशर एज वेल एज डिस्ट्रप्शन इन रॉ मटेरियल सप्लाई, जो इस पैंडेमिक पीरियड में काफी फार्मा कंपनीज को फेस करना पड़ा था। ऑल्सो द कंपनी हैड forayed into agrochemical space through its crop health science division. एक ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बैठाई है नेल्लोर आंध्र प्रदेश में 100 करोड़ में। एक्चुअली द कंपनी इज लेवरेजिंग इट्स एक्सपर्टीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू एक्सपैंड इनटू द एग्रोकेमिकल स्पेस। एक और रीजन है दैट द कंपनी इतना तेजी से बढ़ी है दैट इट हैज 40 research and development labs in 2 R&D facilities with a talent pool of over 500 scientists with capabilities spanning synthetic chemistry of small molecules, peptide chemistry, then oligonucleotides or nano pharmaceuticals and new drug
डिस्कवरी एज वेल। एक और अच्छी बात है कंपनी का कि प्रोमोटर्स का स्टेक काफ़ी है कंपनी में, ऑलमोस्ट 48% स्टेक है उनका। तो दोस्तों कंपनी का नाम है नैटको फार्मा लिमिटेड। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि दिस ऑलवेज न्यू एंट्रेंस इन द मार्केट, स्पेशली इन द हेपेटाइटिस सी सेगमेंट इन द डोमेस्टिक मार्केट, जहां इसको काफ़ी फेस करना पड़ रहा है प्राइसिंग प्रेशर का, जिस कारण से इसके रेवेन्यूज इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा रिस्क जो ऑल फार्मा कंपनीज जो सप्लाई करती है जेनरिक प्रोडक्ट्स यूएस में वो फेस करती है, एंड दैट इज असेसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय द यूएसएफडीए और एनी अदर इंटरनेशनल बॉडी। और अगर उसका असेसमेंट एडवर्स इफेक्ट देता है कंपनी को, देन इट विल हैव अ पोटेंशियल टू सिग्निफिकेंटली चेंज द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनी फार्मा कंपनी इन इंडिया। थर्ड रिस्क जो काफ़ी फार्मा कंपनीज फेस करती हैं द डोमेस्टिक मार्केट में, और ये है जैसे इस कंपनी का क्या हुआ, अब ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में इसका प्राइसिंग कंट्रोल आ गया गवर्नमेंट से, और उस कारण से इसका हेपेटाइटिस सी बिजनेस सफर किया, एंड ड्यू टू दैट देयर वाज अ रिडक्शन इन द मार्केट शेयर एज वेल। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो एनुअल सब्सक्रिप्शन यानी सालाना सब्सक्रिप्शन है 15,000 का, 15,000 का। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्लेड ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और अब अगला कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, और इस कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन अराउंड 10% ऑन एन एवरेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और इसका सीएफओ हैज बीन पॉजिटिव, और केपेक्स करने के बाद इसका एफसीएफ हैज आल्सो बीन पॉजिटिव, अगेन अ गुड साइन। डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.2 है, रिसीवेबल्स करीबन 3 महीने का है, और वर्किंग कैपिटल 5 महीने का। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो ROE has been excellent in the last few years. It has been on an average 23%, which is really very good. And वहीं ROCE has been around 15%. Company makes cables including low tension, high tension, and extra high voltage power cables ranging from 66 kV to 400 kV. इसके अलावा control and instrumentation cables भी बनाती है. Then house wires, rubber cables, winding wires and stainless steel wires का भी अच्छा खासा प्रोडक्शन है. This company is actually among the top 3 power cable manufacturers in India. It also undertakes EPC यानी engineering and procurement construction projects for electrification, including laying of cables, setting up of transformers and separating feeder and last mile connection. इसके अलावा it also provides turnkey solutions to infrastructure प्रोजेक्ट्स. इसके 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसमें 2 हो गए राजस्थान में, 1 हो गया हरियाणा में, और 2 है दादरा और नगर हवेली में. कंपनी अपना B2C बिजनेस को बढ़ाने का कोशिश करिए, क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा हाई है. B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस, और ये कंपनी का 34% ऑफ द रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करती है. इनफैक्ट द कंपनी प्लान्स टू यूटिलाइज इट्स डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एज अ लॉन्च पैड टू केटर टू द लार्ज fast-moving electric goods segment with a focus on house wires in the coming years. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वायर बिजनेस में मार्जिन्स ऑलमोस्ट डबल है, और इस कारण से कंपनी पूरा दम लगा रही है कि इस सेगमेंट में वो अपना अच्छा खासा फुटप्रिंट जमाए. कंपनी का 1600 डीलर का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, और सिंस इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसलिए इट हैज डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद वेरी रेप्यूटेड कस्टमर्स लाइक Power Grid Corporation of India, L&T, and Tata Power. In fact, the company has de-risked its balance sheet significantly by reducing debt through internal cash accruals without compromising on this expansion plans. अब जैसे जनवरी 2020 में कंपनी ने रेज किया था 500 करोड़ थ्रू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, और इसका प्रोसीड्स कंपनी ने यूज किया अपना डेट को रिड्यूस करने के लिए एंड फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एक्सपेंशन. कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि दैट इट हैज अ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स एंड आल्सो अ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल क्लाइंट्स, जिससे इट इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क. इसका ईपीसी सेगमेंट में कंपनी ऑलरेडी हैज अ ऑर्डर बुक ऑफ मोर देन 2600 करोड़, जिससे इसका अच्छा खासा रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखता है इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. आपको ध्यान है मैंने कहा था कि इसका वर्किंग कैपिटल करीबन 5 महीने का है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दैट इट हैज लार्ज इंस्टीट्यूशनल सेल्स, और यहाँ के इसका हाई कलेक्शन पीरियड हो जाता है करीबन 2.5 से 3 महीने का. इसके अलावा इट ऑल्सो हैज हाई इन्वेंट्री पीरियड ड्यू टू वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. और ईपीसी बिजनेस में भी द रिटेंशन मनी विच इज
10% of the project value is actually realized after 6 months. जितना जल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और ऑर्गेनाइजेशन होगा कंट्री का, उतना इस कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। इसके पीछे सिंपल कारण ये है कि देयर विल बी नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर विच विल हेल्प टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस। और गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है ऑन पावर फॉर ऑल, विच मीन्स कि गांव ग्राम का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बैठाया जाएगा जिसके लिए केबल्स का ज़रूरत पड़ेगा। और अगर केबल और वायर का ज़रूरत पड़ेगा तो कंपनी हैज़ प्रूवन प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों कंपनी का नाम है KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक अराउंड 40% है, विच इज़ डिसेंट। रिस्क का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि दैट इट हैज़ टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन द सेक्टर। दूसरा, volatility in the prices of the raw materials, which forms almost 80% of the company's total operating costs. और raw materials का बात करें तो वो हो गए जैसे copper, stainless steel stripes and rods, GI wires, PVC and DOP and aluminium। और ये जितने भी purchases है most of them are backed by LC। और ये जितने भी orders है ये सब actually a mixture of both variable and fixed price contracts। और उस कारण से कंपनी के जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स को उसका पूरा कस्टमर को ट्रांसफर नहीं कर पाती है, थोड़ा हद तक ही कर पाती है बिकॉज ऑफ दिस मिक्स ऑफ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।